Hello and namaste everyone. This is my third video for your chapter Theory of Demand of Microeconomics, and in this video I have taken the most important topic of this chapter, that is law of demand. In this video we will understand the law of demand in detail along with all the assumptions and exceptions of law of demand and the explanation along with table and schedule. Let's just start the law. Look, law of demand is a simple economic law which explains the inverse or negative relationship between price and quantity demanded. It means law of demand explains that there exists an inverse relationship between price and quantity demanded. देखिए जरा, it states that when price of a commodity increases, the quantity demanded will fall, and when price of a commodity falls, the quantity demanded will increase. Simple है ना कि price और quantity demanded में negative और inverse relation exist करता है, both move in opposite directions. देखिए जरा assumptions क्या है इस लॉ के. एक ही assumption है basically that all the factors other than own price of commodity will remain constant. Law of demand is based on a simple assumption of ceteris paribus, that means it will keep all the other factors as constant. Now what are the other factors of demand of a commodity? If I recall the last video determinants of demand, उसमें हमने पढ़ा था कि other factors में क्या क्या चीजें आ जाती है. हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की. प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी अलग है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ गए विच विल इंक्लूड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. देन आफ्टर इनकम ऑफ कंज्यूमर, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, देन द future expectation regarding prices as well as consumers income. These are the factors other than own price of commodity. So law of demand is basically based on the assumption that all the factors other than own price of commodity will remain constant. That means there will be no change in any determinant of demand other than own price. Just have a look on the assumptions. Number 1, income level should remain constant. It means there will be no change in income of buyer. Number 2, taste and preference of buyer will not alter. यानी कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं आ रहा है. नंबर 3, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट. इट मींस देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. नंबर 4, नो न्यू सब्स्टिट्यूट्स फॉर द कमोडिटी, यानी कोई नए सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में नहीं आ रहे हैं, है ना. एंड नंबर 5, प्राइस राइज इन फ्यूचर इज नॉट एक्सपेक्टेड, यानी हमें फ्यूचर में कोई भी राइजिंग प्राइसेस एक्सपेक्टेड नहीं है. सो दीज आर द अदर फैक्टर्स ऑफ कमोडिटी दैट वी हैव जस्ट केप्ट कांस्टेंट while studying the law of demand. Now just have a look on table and curve of demand which will explain the law of demand in detail. Look, if you find a long question in examination, long में अगर आपको law of demand का question मिलता है, then you just have to explain the law along with the table and schedule. ये compulsory हो जाता है हमारे लिए. तो देखिए जरा, यहाँ पे आपके सामने एक डिमांड शेड्यूल भी बनाया हुआ है और एक डिमांड कर्व भी बनाया हुआ है. 2 कॉलम्स इन द डिमांड शेड्यूल, यानी इट इज अ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. जस्ट हैव अ लुक ऑन प्राइसेस. प्राइसेस आर फॉलिंग, दैट इज 10, 8, 6, 4 and 2. नाउ व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस फॉल्स? एज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, सो अ फॉल इन प्राइस कॉजेज अ राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. देखें जरा, 50, 60, 70, 80 and 90. It means when price is falling, the quantity demanded for this commodity is rising. The same thing is explained with the help of a downward sloping demand curve, where I have taken prices on y-axis and quantity demanded on x-axis. देखिए जरा, when price of a commodity was rupees 10, a consumer was buying 50 units of commodity. When price falls to rupees 8, a consumer starts buying 60 units. When price further falls, the consumer continuously increases the quantity demanded. It means both the above schedule and curve are representing that there is an inverse or negative relationship between price and quantity demanded. It means they are explaining the law of demand. अब देखिए, लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस आर द सिचुएशन वेयर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड डजंट एग्जिस्ट. यानी ऐसे केसेस जहां पे ये इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है. एग्जिस्ट नहीं करता है का क्या मतलब हो गया? यानी कि उन सिचुएशन में प्राइस के फॉल होने से हो सकता है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ना हो. जस्ट हैव अ लुक ऑन द कमोडिटीज. नंबर 1,
गिफन गुड्स की अगर हम बात करें तो गिफन गुड्स स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं. दीज आर दोज पुअर क्वालिटी गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस. ये ऐसी कमोडिटी है जिनमें कंज्यूमर क्या करता है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है इनकी डिमांड थोड़ी इंक्रीज करना शुरू करता है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है ना तो वो इसकी डिमांड को और डिक्रीज कर देता है बाय अज्यूमिंग द फैक्ट की क्वालिटी और ज्यादा खराब हो गई होगी. तो गिफन गुड्स हो गए स्पेशल क्वालिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स जिनमें प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है. नंबर सेकंड जो एक्सेप्शन आपका है वो है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स. देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन विच आर टेकन बाय अस फॉर आवर क्रेज, कि हम इनको शो के लिए खरीदते हैं. हमारा क्रेज होता है कि हमें इनको डेकोरेशन के लिए यूज करना है. जैसे कि कॉस्टली झूमर्स जो होते हैं वो इसीलिए परचेज किए जाते हैं ताकि हम उनको परचेज करके उनको शो ऑफ कर सकें या फिर हम उनसे अपनी जो प्रेस्टीज है उसको इंक्रीज कर सकें. तो जो प्रेस्टीजियस गुड्स हो गए जिनको हमारी प्रेस्टीज इंक्रीज करने के लिए लिया है, डेफिनेटली वो हम तभी ज्यादा खरीदेंगे जब उनकी प्राइस ज्यादा होगी, क्योंकि प्रेस्टीजियस शो करना है, हमें अपना स्टेटस सिंबल शो करना है. तो स्टेटस सिंपल जो है वो कॉस्टली गुड्स से ही शो होगा. तो इन कंडीशंस में ये जो गुड्स है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है. नंबर थर्ड, कंज्यूमर इग्नोरेंस. काफी बार कंज्यूमर को पता ही नहीं होता है कि ये कमोडिटी जो है इसकी प्राइस लो होने वाली है या ये कमोडिटी कहीं और लो प्राइस पे भी अवेलेबल है. उस कंडीशन में वो हायर प्राइस पे भी मोर डिमांड कर लेता है बिकॉज ही इज इग्नोरेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशंस. ठीक है, तो उसे नहीं पता है कि मार्केट में कहाँ क्या प्राइस प्रिवेल कर रही है, वो इग्नोरेंट है. तो उस कंडीशन में वो जो भी प्राइस होगी उस पर परचेज कर लेगा और उसके केस में लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगा. नंबर 5 देखिए, सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टफ सिचुएशंस जो होती है, क्राइसिस की जो सिचुएशन होती है उस टाइम पे इसको हम इमरजेंसी सिचुएशन कह सकते हैं ना. हम प्राइस को नहीं देखते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने कोरोना पीरियड को फेस आउट किया है तो इस टाइम पे हमने प्राइसेस को नहीं देखा है, हमने हाई प्राइस पे भी ज्यादा डिमांड की है ये सोच के कि फ्यूचर में कहीं ये कमोडिटी की मार्केट में शॉर्टेज ना हो जाए. सो इट सिंपली मीन्स कि क्राइसिस की सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कंज्यूमर किसी कमोडिटी को खरीदने से पहले प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं देगा. नाउ द लास्ट एक्सेप्शन इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. फ्यूचर में प्राइस से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन है उस टाइम पे भी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये हमने डिटर्मिनेंट वाले टाइम पे भी पढ़ा था. अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में उस कमोडिटी की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाली है तो प्रेजेंट में राइजिंग प्राइसेस पे भी वो ज्यादा खरीदना प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है फ्यूचर में और इंक्रीज हो जाएगी, है ना. तो लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे. और अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो डिक्रीज होने वाली है तो उस कंडीशन में भी वो प्रेजेंट में क्या कर देगा, डिमांड को डिक्रीज कर देगा. मुझे लग रहा है आज प्राइस कम हुई है लेकिन कल और कम होने वाली है, तो इवन व्हेन प्राइस इज फॉलिंग आई विल नॉट इंक्रीज माय क्वांटिटी डिमांडेड, आई विल वेट फॉर टुमारो. ठीक है, तो हम करंट की बात करें तो अगर हमें फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीजिंग लग रही है तो उस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट में क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज नहीं करते हैं. ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ लॉ पढ़ा, अजम्पशंस ऑफ लॉ पढ़ा, शेड्यूल और कर्व के थ्रू उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा, और नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. आगे देखिए जरा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजंस बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. यानी हमने लॉ तो पढ़ लिया, हमें लॉ ने ये भी बता दिया दैट देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन ऐसा होता क्यों है, व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसके लिए हमें 5 रीजंस पढ़ने पड़ेंगे, है ना. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर वी विल डिस्कस व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाई अ फॉल इन प्राइस causes a rise in quantity demanded of a given commodity. ये हमें यहाँ पे पढ़ना है. देखिए, there are 5 reasons. Reason number 1 is utility maximizing behavior. Reason number 2 is income effect, then substitution effect, then several uses of product and large number of consumer. हम one by one इनको समझते जाते हैं. सबसे पहले देखिए law of diminishing marginal utility. कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में देयर एग्जिस्ट अ लॉ दैट इज द लॉ ऑफ DMU.
According to this law, the utility derived, utility here means the satisfaction, है ना? तो the utility derived from each successive unit, it means each additional unit, goes on decreasing. जैसे जैसे आप यानी एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करते हो, उस कमोडिटी की यूटिलिटी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी, वो हमें कम पसंद आएगा, ठीक है? तो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द यूटिलिटी. आगे देखिए जरा क्या मेंशन किया हुआ है. If the consumer gets more satisfaction, he will pay more. अगर ज्यादा satisfaction मिलेगा तो वो ज्यादा खरीदेगा. But if on consuming more and more units of such commodity, हमें कम satisfaction मिल रहा है तो हम same price पे तो demand कम कर देंगे. प्राइस अगर फॉल होने लगेगी, इट मीन्स अब हमें सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है, तो हम उस कमोडिटी की डिमांड को भी ज्यादा कर देंगे. यानी लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग, क्योंकि एडिशनल यूनिट पे सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, यूटिलिटी कम मिलती है, तो हम उस एडिशनल यूनिट पे सेक्रीफाइस भी कम करना चाहेंगे. एंड अ फॉल इन प्राइस, यानी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है, तो हम उस कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स परचेज करेंगे. ठीक है. सेकेंड रीजन देखिए. सेकेंड रीजन समझने से पहले ये चीज माइंड में क्लियर रखना कि हम जो 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, उन 5 पॉइंट्स में हमें ये पढ़ना है कि प्राइस डिक्रीज होती है तो किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है. वी विल नॉट टेक एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. ओन प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर को हमें नहीं डिस्टर्ब करना है. तो देखिए नंबर सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये कह रहे हैं बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑल्सो अ फॉल इन प्राइस of a commodity rises its quantity demanded. Now let's just understand ये कैसे होता है. देखिए, substitution effect refers to substituting one commodity in place of other when it becomes relatively cheaper. It means whenever a commodity becomes cheaper, a consumer substitute it on the place of another commodity. For example, when tea becomes cheaper, its demand increases because consumers of coffee are now substituting tea on the place of coffee. यानी हमने बात तो केवल टी की प्राइस की है और हमने क्वांटिटी भी टी की ली है, पर हमने बता दिया कि जैसे ही टी की प्राइस फॉल होती है, कंज्यूमर इंक्रीजेस इट्स डिमांड. व्हाई? बिकॉज नाउ द कंज्यूमर्स ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी आर ऑल्सो शिफ्टिंग ऑन योर मेन कमोडिटी. ठीक है. तो ये चीज हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे ही उस कमोडिटी की प्राइस कम होती है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाती है. तो ये हमने बात कर ली है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की. अब हम आ जाते हैं थर्ड रीजन पे, दैट इज इनकम इफेक्ट. वापस से वही पॉइंट आपको एक बार बताऊंगी कि हम एक टाइम पे अभी सिर्फ प्राइस को चेंज कर रहे हैं, हम प्राइस के अलावा किसी फैक्टर को चेंज नहीं करेंगे. सो वी विल नॉट चेंज द मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर. फिर भी इनकम इफेक्ट पड़ता है. क्या इनकम इफेक्ट पड़ता है समझते हैं. लुक, व्हेनेवर देयर इज फॉल इन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, इट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट इज ऑन द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर की रियल इनकम चेंज हो जाती है प्राइस की वजह से. तो वो रियल इनकम जैसे ही चेंज होती है, कंज्यूमर उस कमोडिटी की डिमांड को भी चेंज कर सकता है. कैसे? एक एग्जांपल के साथ समझिए. सपोज यू आर हैविंग 100 रुपीज एंड द प्राइस ऑफ डेयरी मिल्क इन मार्केट इज ₹20. आपके पास 100 रुपए है और मार्केट प्राइस जो डेयरी मिल्क की है दैट इज 20 रुपीज. सो इन दिस 100 रुपी यू विल बी एबल टू परचेज 5 यूनिट्स ऑफ डेयरी मिल्क. यानी 5 यूनिट्स ऑफ डेयरी मिल्क is your real income. It is not expressed in terms of money. It is simply expressed in terms of quantity of commodity that you are able to purchase. Now suppose the market price of dairy milk falls from ₹20 to ₹10. Then as a consumer with the same money income of ₹100, you will be now able to purchase 10 units of dairy milk. It means when your price falls, your real income, that is purchasing power of income, increases, due to which you can now purchase more of same commodity with the same money income. So this is just explained in income effect, that there is no changes in money income, but due to a fall or rise in price, the real income of consumer changes, due to which he changes his demand. Now the point number 4 is additional customer. इसके अंदर हमने किसकी बात की है? additional customer की. इस पॉइंट में ये बता रहे हैं whenever there is fall in price of a commodity, the commodity now fits to the budget of consumers who were not able to purchase it at a higher price. यानी अर्लियर कुछ कंज्यूमर इस कमोडिटी को परचेज करने के केपेबल नहीं थे, वो अब इसको परचेज करने के केपेबल हो जाएंगे और उस कमोडिटी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी.
देखिए क्या लिखा है, when price of a commodity falls, many new consumers who were not in a position to buy it earlier due to its high price starts purchasing it. Earlier जो high price की वजह से नहीं खरीद पा रहे थे वो अब खरीद सकते हैं. In addition to new customer, old consumers of commodity starts demanding more due to its reduced prices. नए तो आएंगे और पुराने वाले कंज्यूमर भी अब इस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि इस कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्योंकि इस कमोडिटी की जो प्राइस है वो प्राइस डिक्रीज हो गई है और अब वो इसको नॉर्मली ज्यादा खरीदना अफोर्ड कर सकेंगे. आगे देखिए, रीजन नंबर 5 इज डिफरेंट यूजेस. मेनी कमोडिटीज आर हैविंग डिफरेंट यूजेस लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, एंड दीज आर द कमोडिटीज हैविंग सेवरल यूजेस. तो इन कमोडिटीज के साथ क्या होता है, जब इनकी प्राइस हाई होती है, व्हेनेवर द प्राइसेस ऑफ सच कमोडिटीज इज हाई, कंज्यूमर इनको केवल इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए. लेकिन जैसे ही इन कमोडिटीज की जो प्राइस है वो लो हो जाती है, कंज्यूमर इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए भी यूज करने लग जाएगा. तो whenever there is a fall in price of commodity, consumer starts putting it into different uses. और जैसे ही वो इसको different uses में डालेगा, इस commodity की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. For example, we will just take internet. Earlier when it was costly, we just used to use it for WhatsApp and Facebook. केवल वही चलाते थे हम, है ना. लेकिन जैसे ही इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है, consumer has started using Instagram, they are now using YouTube, they are just scrolling YouTube, और हम और भी बहुत सारी मूवीज भी है, म्यूजिक भी है, हम सब कुछ फोन से ही डाउनलोड कर लिया करते हैं. क्यों? क्योंकि इंटरनेट चीप हो गया है. यानी whenever there is fall in price of a commodity having different uses, consumers will start putting it into more uses, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. It means all the 5 factors explain you that a fall in price of a commodity rises its quantity demanded. What are the 5 points? The 5 reason number 1 was marginal utility concept. Reason number 2 was income effect, then substitution effect, then more consumers, and then different uses of commodity. So these were the 5 reasons for application of law of demand. In this video we have covered law of demand along with the table and curve of law of demand and assumptions and exceptions also, and along with that we have just covered the most important topic, that is reasons behind applicability of law of demand. तो ये हमने complete कर लिया है. Hopefully आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Thank you so much for watching this video.